Now today we shall start with Article 16. It reads that there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the state. Now focus on one thing, appointment. What is appointment? Which type of function is that? आप appointment का तो मतलब समझते ही हैं, लेकिन appointment किस तरीके का function है? Always remember and write it down somewhere, preferably in your bare text itself, that appointment is an executive function. Alright? Appointment is an executive function. Always remember that. अब यहाँ पे लिखा है कि there shall be equality of opportunity for all citizens. इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि Article 16 can be only claimed by the citizens alone. Non-citizens cannot claim the fundamental right which is encapsulated under Article 16. ठीक है? Article 16 को non-citizens claim नहीं कर सकते. Even though Article 15 and 16 both are facets of Article 14. However, unlike Article 14, Article 16 can be only claimed by citizens. ठीक है? वैसे आपको पता है कि Article 15 can also be claimed by citizens only, है ना? So even though they are facets of Article 14, that does not mean that the Constitution permits them to be claimed by a non-citizen. ठीक है? याद रखिएगा, equality of opportunity in matters of public employment is a fundamental right available to the citizens only. ठीक है? Non-citizens को ये fundamental right available नहीं है. Let us read Article 16 Clause 2. It says, no citizen shall, on the ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, or any of them, be ineligible for or discriminated against in respect of any employment or office under the state. Now you might have noticed that Article 16 Clause 2 is very similar to Article 15 Clause 2. However, there is a difference. Two extra grounds are added. What are those extra grounds? Descent and residence. These grounds are not available in Article 15 Clause 2. However, when it comes to Article 16 Clause 2, the scope of restrictions is wider. ठीक है? क्योंकि यहाँ पे दो extra ground है. क्या है? Descent और residence. You won't find this ground in Article 15 Clause 2. ये descent और residence वाला part नहीं मिलेगा. Then we come to Article 16 Clause 3. पहले इसकी bare reading कर लेता हूँ, फिर मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा रुक के. ठीक है? So Article 16 Clause 3 says, nothing in this article shall prevent the Parliament from making any law prescribing in regard to a class or classes of employment or appointment to an office under the government of or any local or other authority within a state or union territory, any recruitment as to residence within that state or union territory prior to employment or appointment. तो कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सेविंग क्लॉज बना रखा है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो कुछ क्लासेस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए या फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस ये प्रिस्क्राइब कर सकती है कि वहाँ पे रेजिडेंस होना चाहिए. ठीक है? वहाँ पे ऐसे पर्सन का रेजिडेंस होना चाहिए, पर ये पावर किसके पास है? सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के पास है, और पार्लियामेंट के अलावा किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर अवेलेबल नहीं है. याद रखिएगा. ठीक है? नाउ यू मस्ट रिमेंबर that Article 16 is a facet of Article 14, and Article 14 and Article 16 Clause 1 are very closely interconnected. Alright? In fact, to the point we can say that Article 16 Clause 1 has its roots in Article 14. ठीक है? Article 16 Clause 1 की roots कहाँ पे हैं? Article 14 में. Article 16 Clause 1 particularizes the generality of Article 14 and identifies it in a constitutional sense. That is, equality of opportunity in the matters of employment under the state. मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि Article 16 क्या करता है कि जो एक जनरल कंसेप्ट है इक्वालिटी का, उसको पर्टिकुलराइज कर देता है, स्पेसिफिक कर देता है. किस सेंस में? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के सेंस में. ठीक है? ध्यान रखिएगा इस बात का. अब ऑन अ कंपैरेटिव बेसिस
आर्टिकल 16 कैन बी सेड टू डील विद अ वेरी लिमिटेड सब्जेक्ट. कंपैरेटिव बेसिस पे बात कर रहे हैं, बिकॉज व्हेन वी कंपेयर इट विद आर्टिकल 15 or in fact even with article 14 we find it somewhat to be narrow. Of course it is narrow because it deals only with the matters of public employment. So on a comparative basis we can say that article 16 deals with a very limited subject, that is public employment. On the other hand, article 15 clause 1 is much wider in scope as it covers the entire range of state activities. The ambit of article 16 clause 2 is restrictive in scope than that of article 15, because article 16 clause 2 is confined to employment or office under the state, meaning services under central and state governments and their instrumentalities. However, article 15, being more general in nature, covers many varied situations of discrimination. Further, the prohibited ground of discrimination under article 16 clause 2 are somewhat wider than those under article 15 clause 2, because article 16 clause 2 prohibits discrimination on two additional grounds of descent and residence apart from religion, race, caste, sex and place of birth. ठीक है, मेरे कहने का क्या मतलब हुआ? मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप आर्टिकल 16 को आर्टिकल 15 से कंपेयर करते हैं तो आप इसको समवॉट नैरोअर पाते हैं. नैरोअर इसलिए क्योंकि 16 का स्कोप छोटा है. स्कोप किस चीज़ से डील करता है? सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से डील करता है. ठीक है, लेकिन आर्टिकल 15 तो कवर्स द इंटायर रेंज ऑफ स्टेट एक्टिविटीज़, है ना. वो स्टेट एक्टिविटीज़ को पूरे के पूरे कवर करता है. इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. तो उस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि आर्टिकल 16 व्हेन कंपेयर टू आर्टिकल 14 इज नैरोअर इन स्कोप. मैं इस पे केस लॉ आपको पहले दे चुका हूँ, सो आई वोंट रिटरेट इट अगेन. अब जब आप आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 पे आते हैं और रिस्ट्रिक्टिव ग्राउंड्स को देखते हैं तो आप पाएंगे कि रिस्ट्रिक्टिव ग्राउंड्स जो हैं व्हेन यू कंपेयर इट विद आर्टिकल 15 क्लॉज 2 ये वाइडर हैं. ठीक है, क्योंकि डिसेंट और रेसिडेंस ऐड हो गया है जो कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 में नहीं था. तो उस सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि द ग्राउंड्स which are labeled as prohibited grounds of discrimination are wider in article 16 clause 2. ठीक है, why? Because descent and residence are added, कि इनके इन दोनों के बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता. ठीक है, that is apart from religion, race, caste, sex and place of birth. अब आप जानते हैं आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 में रेसिडेंस और डिसेंट वाला ग्राउंड नहीं अवेलेबल है. तो जहाँ तक हम बात करेंगे प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन की, जब हम बोलेंगे कि आर्टिकल 15 के क्लॉज 2 और आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन में कौन सा क्लॉज वाला वाइडर है, तो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 वुड बी द विनर. ठीक है, लेकिन ओवरऑल जब आप देखेंगे देन इट विल टर्न आउट दैट आर्टिकल 16 इज नैरोअर इन स्कोप, क्योंकि वो सिर्फ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से डील कर रहा है. Article 15 meanwhile is covering entire range of state activities, not just public employment. Article 16 is dealing with just and just public employment. अब इसमें और भी सेविंग क्लॉज आने रिजर्वेशन के और ये सारी चीज़ों के, उन पे ही मेन डिस्कशन है. पर अभी थोड़ा इसको समझ लीजिए. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड आर्टिकल 16 इन इट्स ट्रू एसेंस एंड स्पिरिट. अब जो वर्ड ऑकर होता है डिस्क्रिमिनेशन, उसका क्या कॉनोटेशन है आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में? सेम है जैसे आर्टिकल 15 में था. इट इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ अनफेवरेबल बायस और अनफेवरेबल वाइस. ठीक है, अब आप जानते हैं कि आर्टिकल 14 गारंटीज राइट ऑफ इक्वालिटी. ठीक है, एक जनरल सेंस में, चाहे सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, ही हैज़ द राइट ऑफ इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14. Article 15 and 16 are the instances of same right of equality but in specific situations. ठीक है, वो same right of equality की बात करते हैं but in specific situations. तो we can say this and you need to write it down that article 14 is the genus while article 16 is its species. ठीक है, article 14 is the genus and article 15 and 16 are its species.
since we are speaking on Article 16 primarily, so that is why I will just focus on Article 16 and its relationship with Article 14. So Article 14 and 16 are forming the part of the same constitutional code of guarantees, and they supplement each other. In other words, Article 16 is only an instance of application of the general rule of equality, which is laid down in Article 14, and it should be interpreted and construed as such. Equality in Article 16 clause 1 means equality as between the members of the same class of employees, and not the equality between the members of separate independent classes. I'll reiterate again, and you need to listen to it very carefully. Equality in Article 16 clause 1 means equality as between members of the same class of employees, and not the equality between the members of separate independent classes. Always remember, the equal protection of law does not postulate equal treatment of all persons without distinction. It merely guarantees the application of same laws alike without discrimination to all persons similarly situated. Means equality principle will be administered if the persons in a class are in equal circumstances. ठीक है? It does not postulate equality between unequals. Therefore, Article 16 does not bar a reasonable classification of employees or reasonable test of selection. ठीक है? कोई ये नहीं कह सकता कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि जो लेट अस सपोज यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जिसमें आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स का सिलेक्शन होता है, उसका और जुडिशियल सर्विस का जो एग्जामिनेशन होता है ये बराबर होना चाहिए. और आदमी बोले कि नहीं देखिए उनका एग्ज़ाम कठिन होता है या उनका एग्ज़ाम आसान होता है, मतलब कोई भी पक्ष ऐसी बात कर सकता है, चाहे वो आईएएस आईपीएस बोले, चाहे वो जुडिशियल एस्पेरेंट बोले कि उनका एग्ज़ाम आसान होता है हमें ये देने दीजिए, या आईएएस आईपीएस बोले नहीं उनका एग्ज़ाम आसान होता है हमें इससे क्यों नहीं सिलेक्शन मिल रहा. तो देखिए आर्टिकल 16 इज ऑल्सो नॉट प्रोहिबिटिंग रीजनेबल क्लासिफिकेशन, क्योंकि इट इज़ द स्पीशी ऑफ आर्टिकल 14. ऐसा मत समझ लीजिएगा कि एक पर्सन बोले कि भाई वन नेशन है तो वन ही एग्ज़ाम क्यों नहीं होता हर सिचुएशन के लिए, है ना, ऐसा नहीं हो सकता. सो रीजनेबल क्लासिफिकेशन इज परमिटेड, याद रखिएगा यहाँ पर भी. ऑलवेज रिमेंबर दैट देयर कैन बी नो डिनायल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी unless the person who complains of discrimination is equally situated with the person or persons who are alleged to have been favored. इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि आर्टिकल 16 में देयर वुड बी नो डिनायल ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू अ सिटीजन unless it can be shown by the complainant that there has been discrimination between him and other persons who are similarly situated within the same class. ठीक है? Always remember, those who are similarly situated or similarly circumstanced are entitled to equal treatment. And when the persons are similarly situated or similarly circumstanced and they are given unequal treatment, then it violates the equality principle. ठीक है? अब जरा हम लोग आर्टिकल 16 के अंदर ही कंपैरिजन करते हैं. ठीक है? लेट अस कंपेयर आर्टिकल 16 क्लॉज 1 विद आर्टिकल 16 क्लॉज 2. You will immediately find one thing, that article 16 clause 1 is wider in scope than article 16 clause 2. See, article 16 clause 2 is negative in scope, it is prohibitive in nature. ठीक है? While article 16 clause 1 is positive in nature. In fact, I can say with a surety that article 16 clause 2 is just bringing out in negative form what is guaranteed affirmatively by article 16 clause 1. ठीक है? article 16 तो
आर्टिकल 16 क्लॉज 2 सिर्फ उन्हीं चीज़ों की बात कर रहा है नेगेटिव फॉर्म में जो आपको ऑलरेडी गारंटीड है आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 में. सो आर्टिकल 16 के जो प्रोहिबिटिव नेचर्स हैं दे आर मोर इन नेचर ऑफ बीइंग स्पेसिफिक देन एनीथिंग एल्स. ये थोड़ा स्पेसिफिकेशन के पर्पस के लिए है. ठीक है. अब आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 में नंबर ऑफ थिंग्स आ सकती हैं, नंबर ऑफ सिचुएशन आ सकता है. ठीक है. दिस इज वाई आर्टिकल 16 क्लॉज 1 इज वाइडर इन स्कोप, वाइल आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 2 है जब आप इंटरनल असेसमेंट करेंगे तब आपको ये रियलाइज होगा कि ये प्राइमरली और सिर्फ प्राइमरली एक नेगेटिव फॉर्म में बता रहा है कि कौन कौन से डिस्क्रिमिनेशन नहीं अलाउड है. ठीक है. अब आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में एक और चीज गौर करिएगा, ये जितने भी डिस्क्रिमिनेशन है ना दे आर क्वालिफाइड बाय द वर्ड ओनली. ठीक है. शुरू होता है ना ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ. सो द क्वालिफिकेशन इज देयर एंड द क्वालिफिकेशन इज ऑफ द वर्ड ओनली. इसका ये मतलब है कि where there is discrimination only on the grounds mentioned therein, then Article 16 Clause 2 would be attracted. But where the discrimination is based partly on one of such grounds and partly on some other rational ground not mentioned in Article 16 Clause 2, the matter may fall under Article 16 Clause 1 but not under 16 Clause 2. By this I mean that under Article 16 Clause 2, let us suppose state were to legislate a law that only a particular community, a particular religious community would be appointed to a particular public post. ठीक है. वो एक पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है जिसपे सबका हक है. ये पर्सन्स जिस रिलीजन को बिलोंग करते हैं सिटीजन्स हैं. तो ऐसी सिचुएशन में जो व्यक्ति उस रिलीजन को नहीं बिलोंग करता है वो इस लेजिस्लेशन को चैलेंज कर सकता है कि देखिए आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 जो है इट प्रोहिबिट्स लेजिस्लेशन फॉर द पर्पस ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट विच आर बेस्ड ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन. ठीक है. जिसमें डिस्क्रिमिनेशन इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन और एनी अदर प्रोहिबिटेड ग्राउंड दैट इज मेंशन्ड इन आर्टिकल 16 क्लॉज 2. है ना. तो ऐसे में क्या कर सकते हैं आप, ऐसे में आप उसे चैलेंज करवा सकते हैं और लॉ स्ट्रक डाउन हो जाएगा अगर कोर्ट ने पाया कि स्टेट का जो लेजिस्लेशन है इट इज बेस्ड ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन. ये सिर्फ रिलीजियस ग्राउंड पे बेस्ड है. तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट क्या करेगा, स्टेट विल स्ट्राइक सच लेजिस्लेशन डाउन बिकॉज इट्स वायलेटिंग आर्टिकल 16 क्लॉज 2. है ना. लेकिन अगर मान लीजिए स्टेट का लेजिस्लेशन इज बेस्ड ऑन वन ऑफ सच ग्राउंड्स, मान लीजिए आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में कोई भी एक ग्राउंड पकड़ लीजिए और उसके अलावा स्टेट का लेजिस्लेशन कुछ और ऐसे ग्राउंड पे मौजूद है. ठीक है. वो दैट लेजिस्लेशन इज बेस्ड on other grounds also which are not mentioned in article 16 clause 2. मतलब वो religion, race, caste, sex, descent, place of birth और residence इनमें से किसी भी ग्राउंड में नहीं आता है, वो अलग एडिशनल ग्राउंड्स हैं. तो आप ये तो चैलेंज कर सकते हैं कि इट इज़ वायलेटिंग आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बाय शोइंग कि ये जो बाकी के दूसरे ग्राउंड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन रीजनेबल नहीं है एंड इट इज़ फेलिंग ऑन द टेस्ट ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन. बट यू वोंट बी एबल टू चैलेंज under article 16 clause 2. why? because article 16 clause 2 ने ये जो grounds mention कर रखे हैं ना, religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence, इनको qualify करके रखा है. qualification क्या है? only of. कि मतलब legislation या law सिर्फ इस ground पे नहीं हो सकता. अगर सिर्फ इन grounds पे है या इनमें से either grounds पे है, then in that situation that is a prohibited discrimination and the constitution frowns on such legislations. And if the state were to legislate such a law, it would be hit by article 16 clause 2.
दैट इज द कंटेक्स्ट ऑफ द टर्म ओनली. तभी मैंने बोला कि आर्टिकल 16 इज अ बिट वाइडर इन स्कोप. ठीक है, इट इज वाइडर इन स्कोप. क्योंकि जो मेरा दूसरा इलस्ट्रेशन था जहाँ पे मान लीजिए स्टेट ने लेजिस्लेट किया है ऑन द ग्राउंड ऑफ कास्ट, ये बोल दिया क्योंकि पर्टिकुलर कास्ट के लिए हम एक लेजिस्लेशन बना रहे हैं और इन्हीं को पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा. ठीक है, लेकिन जो पोस्ट बनाई है उसके साथ उन्होंने और भी 3-4 क्लासिफिकेशन कर रखे हैं कि इन ये भी क्लासिफिकेशन है, इसकी वजह से ये ज़रूरी हो गया है. अब वो जो क्लासिफिकेशन है और जो ग्राउंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन है दे डू नॉट फॉल अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 2. मतलब वो रिलीजन, रेस, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ वाले ग्राउंड या रेसिडेंस वाले ग्राउंड में नहीं फॉल कर रहे हैं. तो आप उसको आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 में तो चैलेंज कर लोगे, पर आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में चैलेंज नहीं कर सकते. ठीक है, बिकॉज यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन दी गई है और जिस डिस्क्रिमिनेशन को रोके जाने की बात की गई है वो ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है which is based only of the grounds mentioned in article 16 clause 2. ठीक है, that is religion, race, caste, sex, descent, place of birth और residence. ठीक है, इसी तरीके से एक और सिचुएशन इमेजिन करिए कि लेट अस सपोज द स्टेट गवर्नमेंट हैज इनेक्टेड अ लॉ, और स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट आप चाहे इमेजिन कर लीजिए. ठीक है, वैसे तो लॉ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर इनेक्ट करती हैं. आप एग्जाम में जब भी बोलेंगे या ये एक्सप्रेशन यूज़ करेंगे कि वो हैज़ इनेक्टेड अ लॉ, तो गवर्नमेंट्स मत लिखिएगा प्लीज़. ठीक है, ऑलवेज बी वेरी स्पेसिफिक एंड क्लियर. इट इज़ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर वो इनेक्ट्स द लॉ. ठीक है, आप एस्पेरेंट्स हैं तो एस्पेरेंट्स को हमेशा बड़ा प्रिसाइज होकर लिखना पड़ता है. आप बोलचाल की भाषा में वहाँ नहीं लिख के आ सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट लॉ इनेक्ट कर दिया, हम नंबर कटे आएंगे इस बात के. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक. मैं बोलचाल के लिए समझा रहा हूँ, वो बातें अलग है. तो मान लीजिए, लेट अस कम बैक टू द इलस्ट्रेशन, कि स्टेट या सेंट्रल लेजिस्लेचर हैज़ इनेक्टेड अ लॉ कि only the members of Hindu community are entitled to the post of the priest or mahant in the Hindu temple. ठीक, ये उन्होंने क्या कहते हैं एक लेजिस्लेशन क्रिएट किया है. अब ये मान लीजिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के स्फेयर में आता है. ठीक है, मैं अब इसके बाद एक और इलस्ट्रेशन दूंगा, बट फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी पहले लूज एक्सप्रेशन से समझिए, लूज इलस्ट्रेशन से समझिए, फिर थोड़ा स्पेसिफिक इलस्ट्रेशन देंगे. तो मान लीजिए कि only the person of Hindu community are entitled to the position of mahant or priest inside a Hindu temple which are under the state control. ठीक है, अब ऐसे में क्या कोई पर्सन ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी वो चैलेंज करेगा कि ओके दिस लेजिस्लेशन इज वायलेटिंग आर्टिकल 16 क्लॉज 2, है ना? प्राइमा फेसा अगर आप देखेंगे इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 16 क्लॉज 2, बट इट इज नॉट, क्योंकि इस लेजिस्लेशन के साथ साथ मान लीजिए और भी ग्राउंड्स हैं कि ये जो हिंदू कम्युनिटी का जो प्रीस्ट होगा इसके लिए आस्था होनी उस रिलीजन में बहुत ज़रूरी है. साथ ही साथ उसको आगाम शास्त्रों की नॉलेज बहुत होनी चाहिए. ठीक है, दैट आर द रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस. ठीक है, उसको कुछ लोग आगाम शास्त्र भी कहते हैं. तो इन शास्त्रों की नॉलेज बहुत ज़रूरी है, उसको पौराणिक नॉलेज बहुत ज़रूरी है, उसको एक स्पेसिफिक प्रीस्टली ट्रेनिंग से भी होके आना चाहिए, एसेट्रा. ये क्वालिफिकेशन है. तो यहाँ पे और भी क्लासिफिकेशन है, और जो ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ये है टू बेटर एडमिनिस्टर हिंदू टेम्पल्स. ये ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासिफिकेशन, और स्टैट्यूट का भी ऑब्जेक्ट यही है. ठीक है, तो आर्टिकल 16 में ये पर्सन would be better off challenging it under article 16 clause 1, not under article 16 clause 2. क्योंकि आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 में अगर उसने सिर्फ चैलेंज किया तो कोर्ट बोलेगा कि देखिए आपने ये तो सही कहा कि लेजिस्लेशन एक पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़ा हुआ है और डील्स विद पब्लिक एम्प्लॉयमेंट,
लेकिन आपने ओनली शब्द पे गौर नहीं किया. आर्टिकल 16 क्लॉज 2 is barring the discrimination which is based only on the ground of religion, race, caste, sex, descent, place of birth और residence. अगर उन ग्राउंड्स के साथ अदर ग्राउंड जुड़े हैं, ठीक है, जो कि आर्टिकल 16 के क्लॉज 2 के प्रोहिबिटेड ग्राउंड्स में नहीं आते, तो ऐसी सिचुएशन में आर्टिकल 16 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं करेगा. ऑलराइट, आप उसको आर्टिकल 16 क्लॉज 1 में ज़रूर चैलेंज कर सकते हैं, ये दिखा के कि जो रिलीजन वाला पार्ट है दैट इज हिट बाय आर्टिकल 16(2), लेकिन जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है वो अनरीजनेबल है, वो क्लासिफिकेशन इज अनरीजनेबल. लेट अस सपोज ऐसा दिखा दिया जाए, इट इज पॉसिबल टू डू सो, ऑल्दो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू डू सो. लेकिन मैं आपको एक थ्योरेटिकल एग्जांपल दे रहा हूँ कि इट इज पॉसिबल कि यू कैन चैलेंज इट अंडर आर्टिकल 16 क्लॉज 1, बट प्रैक्टिकली स्पीकिंग यू वोंट सक्सीड इन इट. चैलेंज तो कर देंगे, सक्सीड नहीं कर पाएंगे ऐसे लिटिगेशन में, क्योंकि क्लासिफिकेशन यहाँ पे रीजनेबल है. ठीक है, तो यहाँ पे कोर्ट ये डिफरेंस दिखा देगा. तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 16 क्लॉज 1 इज वाइडर इन इट स्कोप. ठीक है, ये अपने स्कोप में वाइडर है, क्योंकि अगर डिस्क्रिमिनेशन होगा तो वैसे ही इक्वालिटी के प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है, और उस डिस्क्रिमिनेशन के साथ अगर कोई अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन फिक्स्ड है तो भी आर्टिकल 16 के क्लॉज 1 में जा रहा है, क्योंकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी के प्रिंसिपल का वायलेशन हो रहा है. ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 16 इज नॉट प्रोहिबिटिंग रीजनेबल क्लासिफिकेशन, बट इट डज प्रोहिबिट अनरीजनेबल क्लासिफिकेशन. ठीक है, और अगर मान लीजिए आर्टिकल 16 का क्लॉज 2 ना भी होता, देन ऑल्सो इट वुड हैव बीन पॉसिबल टू रीड दीज ग्राउंड्स विद इन आर्टिकल 16 क्लॉज 1 बाय द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन. ठीक है, दैट इज वाई आर्टिकल 16 क्लॉज 1 इज मच वाइडर इन स्कोप. और इसीलिए मोस्ट ऑफ द ऑथर्स का ये मानना है और मोस्ट ऑफ द जूरिस्ट का ये मानना है कि आर्टिकल 16 क्लॉज 2 इज जस्ट एक्सप्रेसिंग इन अ नेगेटिव वे व्हाट इज इम्प्लिसिट इन आर्टिकल 16 क्लॉज 1. ठीक है, आर्टिकल 16 क्लॉज 2 बस स्पेसिफिक बोल रहा है और थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन में बोल रहा है. और याद रखिएगा आर्टिकल 16 क्लॉज 1 इज वाइडर इन स्कोप. ठीक है, बिकॉज यू वोंट बी एबल टू चैलेंज any extra ground that is not mentioned in article 16 clause 2. ठीक है, अगर मान लीजिए रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेसिडेंस के अलावा लेजिस्लेचर के पास एक दूसरा ग्राउंड है अवेलेबल है, या उसके अलावा कोई ग्राउंड अवेलेबल है, ठीक है, कपल्ड विद दीज ग्राउंड्स, देन यू वोंट बी एबल टू चैलेंज इट विद इन आर्टिकल 16 क्लॉज 2. ठीक है, उसका प्रॉपर प्लेस होगा चैलेंज इट विद इन आर्टिकल 16 क्लॉज 1. और ये सब चीज़ें कैसे निकलती हैं? सिर्फ एक शब्द के एडिशन की वजह से ओनली. ठीक है, ओनली बिकॉज दिस वर्ड वॉज एडेड. सिर्फ एक शब्द के एडिशन की वजह से डिस्क्रिमिनेशन या लेजिस्लेशन सिर्फ इन्हीं ग्राउंड पे प्रोहिबिटेड है. इसके अलावा कोई अगर एक्स्ट्रा ग्राउंड होगा तो तुरंत स्कोप के बाहर हो जाएगा ऑफ आर्टिकल 16 क्लॉज 2. ठीक है, दैट इज वाई लॉ इज़ वेरी प्रिसाइज. इसके लिए एक और चीज़ बोली जाती है, वर्बिस लेजिस नॉन एस्ट रिसेंडम, फ्रॉम द वर्ड्स ऑफ लॉ देयर इज नो डिपार्चर. खैर आगे बढ़ते हैं. अब आपने देखा है कि आर्टिकल 16 एक टर्म का यूज़ करता है और उस टर्म का नाम है ऑफिस. ठीक है, एम्प्लॉयमेंट तो आप समझते ही हैं, पर एक ऑफिस टर्म का यूज़ करता है. ऑफिस का क्या मतलब है? ऑफिस मीन्स a subsisting permanent substantive position having an existence independent of the person who fills it. ठीक है, office means a subsisting permanent substantive position having an existence independent of the person who fills it, which is filled in succession by successive holders and which has more or less a public character to which its duties are attached. ये है definition. Courts have reiterated this definition in numerous case laws. ज़रूरी नहीं है आपको केस लॉ मेंशन करना है, आपको सिर्फ समझाने के लिए अभी मैं बोल रहा हूँ. ठीक है, अभी समझिए, समझने पे ध्यान दीजिए. तो जैसे लेट मी गिव एन एग्जांपल. जैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की पोस्ट है, पब्लिक पोस्ट है,
न्यूमरस पर्सन्स इन सक्सेशन फिल करते हैं उस पोस्ट को, है कि नहीं? इट इज़ व्हाट? इट इज़ एन ऑफिस. सिमिलरली ऑफिस ऑफ अ मिनिस्टर, बी इट चीफ और प्राइम मिनिस्टर, इट इज़ एन ऑफिस. ठीक है, तो ऑफिस की प्रॉपर डेफिनेशन जब भी लिखिएगा ये ज़रूर लिखिएगा कि ऑफिस मीन्स अ सबसिस्टिंग परमानेंट सब्सटेंशियल पोजिशन having an existence independent of the person who fills it, which is filled in succession by successive holders, and which has more or less a public character to which duties are attached. ठीक है, यहाँ पे पब्लिक कैरेक्टर वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्राइवेट ऑफिस आर्टिकल 16 के कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता है. इट डील्स ओनली विद क्या कहते हैं, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 16 ओनली डील्स विद द मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. Now let us discuss a few case laws in order to properly appreciate and elucidate the scope of Article 16 Clause 1. ठीक है, इसके लिए मैं केस लॉ मेंशन करूंगा of General Manager Railways versus Rangachari, AIR 1962, Supreme Court, page number 36. If you want to know it, note it down, you do note it down, but it is not necessary. I am only quoting this case law for the purpose of elucidation. All right. In this case, the Honorable Supreme Court spoke about Article 16 Clause 1 and said that the equality guaranteed by Article 16 Clause 1 takes within its fold all stages of service. The expression matters relating to employment in Article 16 Clause 1 is not restricted only to the initial stage of appointment. The expression appointment to an office in Article 16 Clause 1 does not mean merely the initial appointment. Article 16 Clause 1 includes all matters in relation to employment, both prior and subsequent to the employment, which are incidental to the employment or which forms the part of the terms and the conditions of such employment, such as salary, periodical increments, leave, promotion, fixation of seniority, gratuity, pension, superannuation, and even termination of employment. All are within the scope of Article 16 Clause 1. The guarantee of Article 16 Clause 1 could become illusory if narrowly construed, for then the state could comply with its formal requirement by affording equality at the initial stage, but defeats its object by making discriminatory provision as regards to other matters subsequently. So according to the Supreme Court, Article 16 Clause 1 includes all matter in relation to employment, both prior and subsequent to the employment, and also the incidental actions to the employment which form part of the terms and conditions of such employment, चाहे वो salary, periodical increments, leave, promotion, fixation, seniority, gratuity, pension, superannuation, and even termination of employment. In fact, even transfer as well. ठीक है, even the transfer also would be governed by Article 16. This is what the Supreme Court said under the case law of General Manager Railways versus Rangachari. ठीक है, मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, एक और केस लॉ मेंशन करता हूँ. दिस इज स्टेट ऑफ केरला वर्सेस थॉमस, AIR 1976, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 490. Supreme Court said that Article 16 Clause 1 and Article 16 Clause 2 give effect to Article 14 and 15. All these articles form part of the same constitutional code of guarantees and supplement each other. Article 16 Clause 1 should therefore be construed in a broad and general way and not in a pedantic and technical way. When so construed, the expression matters relating to employment cannot mean merely matters prior to the act of appointment, nor can appointment to an office mean merely an initial appointment. It must include all matters relating to employment, whether prior or subsequent to the employment, or whether these are
either incidental to such employment or form parts of its terms and condition. ठीक है. अब एक सवाल आपके दिमाग में हो सकता है आ रहा हो कि ये जो प्रोटेक्शन है ऑफ आर्टिकल 14 एंड 16, क्या ये टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट का अवेलेबल होगा? लेट अस सपोज देयर इज अ टेम्परेरी पोस्ट क्रिएटेड एंड इट इज़ अ पब्लिक पोस्ट. ठीक है, वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट से डील करती है, उसमें पब्लिक ड्यूटीज़ हैं, पर वो पोस्ट टेम्परेरी है, तो उसमें जो अपॉइंटी है वो भी टेम्परेरी है. सो कैन अ टेम्परेरी गवर्नमेंट सर्वेंट बी इंटाइटल्ड टू प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 14 and article 16? The answer is yes. The protection of article 14 and 16 would be available to a temporary government servant if he has been arbitrarily discriminated against and singled out for a harsh treatment. ठीक है, अगर उसको सिंगल आउट कर दिया गया और जो सिमिलरली सिचुएटेड हैं उस सेम क्लास में, ठीक है, ये क्लासरूम वाली क्लास की बात नहीं कर रहा है, ये मैं क्लासिफिकेशन वाले क्लास की बात कर रहा हूँ. So if those persons similarly situated are not subject to such discrimination, while only one person is singled out and is arbitrarily discriminated, then article 14 and 16 will come to aid of such person, even though he is a temporary government servant. Supreme Court remarked this in the case of Government Branch Press versus D.B. Belliyappa, AIR 1979, Supreme Court, page number 429. ऑलवेज रिमेंबर, आपको ये जो केस लॉ है ये मैं बस आपकी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए बोल रहा हूँ. ये वाला केस लॉ सर्विस मैटर से रिलेट करता है, आपको नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई पूछेगा भी नहीं. दिस इज जस्ट टू गिव यू एन एज ओवर एवरीवन एल्स. ठीक है, अब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जस्ट लाइक इन आर्टिकल 14, अंडर आर्टिकल 16 एज वेल, इक्वालिटी कैन नॉट बी अ मैथमेटिकल इक्वालिटी. ठीक है, याद रखिएगा कि मैथमेटिकल इक्वालिटी इज नॉट एनविसेज्ड बाय आर्टिकल 16 कि राइट अप टू द डेसिमल इक्वालिटी होनी चाहिए, अदरवाइज इट विल वायलेट द इक्वालिटी प्रिंसिपल एनश्राइंड अंडर आर्टिकल 14 एंड 16. नो, मैथमेटिकल इक्वालिटी इज नॉट सो मच नेसेसरी. See, reasonable classification is permissible for various purposes which are related to employment. ठीक है, एंड इन डूइंग सो देयर माइट बी, क्या कहते हैं, माइनर डिफरेंसेस हो सकता है, क्लास में माइनर डिफरेंसेस हो जाए इन दैट क्लास. ठीक है, वाइल लेजिस्लेटिंग, क्योंकि मैथमेटिकल इक्वालिटी एंड स्पेशली इन द केस ऑफ ह्यूमन अफेयर्स इज वेरी डिफिकल्ट टू अकम्प्लिश. सो व्हाट द आर्टिकल एनविसेजेस is the similarity of treatment, not the identity of the treatment. ठीक है, ये नहीं हो सकता कि आइडेंटिटी ऑफ द ट्रीटमेंट से मेरा कहने का मतलब है कि मैथमेटिकल प्रिसिजन से राइट अप टू द वेरी डेसिमल सब कुछ सेम होना चाहिए, अदरवाइज इक्वालिटी प्रिंसिपल वुड बी वायलेटेड. ठीक है, दैट इज नॉट नेसेसरी. व्हाट इज नेसेसरी, दैट देयर शुड बी अ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रीटमेंट. ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही ध्यान रखिए. अब आपने एक चीज़ सुनी होगी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, है ना. इट इज़ डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. हाउएवर, द सुप्रीम कोर्ट हैज रिड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फ्रॉम आर्टिकल 14, 16 एंड 39D ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रीडिंग द प्रियम्बल टुगेदर. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, 16, 39D और प्रियम्बल को एक साथ पढ़ते हुए ये प्रिंसिपल डिड्यूस कर दिया फंडामेंटल राइट में ही. आई विल एलुसिडेट विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन अभी, पर पहले जान लीजिए. वैसे तो ऐसा प्रिंसिपल एक्सप्रेसली एम्बॉडीड नहीं है इन द फंडामेंटल राइट, बट द सुप्रीम कोर्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड दिस प्रिंसिपल बाय द वे ऑफ इंटरप्रिटेशन. Supreme Court explained the same in the case of State of Madhya Pradesh versus Pramod Bhartiya. Its citation is AIR 1993 Supreme Court, page number 286. Supreme Court said that the doctrine of equal pay for equal work is implicit in the doctrine of equality enshrined in Article 14 and flows from it. And the rule is as much part of Article 14 as it is part of Article 16 clause 1. मतलब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जगह वो बात बोली कि ये आर्टिकल 14 का भी पार्ट है और आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का भी पार्ट है. ठीक है, इट इज बोथ द पार्ट ऑफ आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 1.
the principle of equal pay for equal work. The doctrine is also stated in Article 39D as a directive principle which ordains the state to direct its policy towards securing equal pay for equal work for both men and women. अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्ट्रिन कैसे एक्सप्लेन की है? लेट मी कोट यू अ केस ऑफ जयपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा. इसमें जो भी केस लॉ मैं कोट कर रहा हूँ ना अभी, इट इज़ ओनली नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ यू अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट. इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर यू टू नोट डाउन द केस लॉ. मन करे तो नोट डाउन कर लीजिएगा. So the case is Jayapal versus State of Haryana, AIR 1988, Supreme Court, page number 1504, 1504. Supreme Court explained the doctrine as follows. Supreme Court said that the doctrine of equal work for equal pay would apply on the premise of similar work, but it does not mean that there should be complete identity in all respects. If two classes of persons do some work under the same employer with similar responsibility under similar working condition, the doctrine of equal work, equal pay would apply, and it would not be open to the state to discriminate one class with the other in paying the salary. And I am glad that the Supreme Court interpreted equal pay for equal work as a fundamental right, because you can imagine the situation had it not been the case. मान लीजिए, क्योंकि देखिए पहले तो डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है, अंडर आर्टिकल 39D. अब इमेजिन द स्टेट वर टू से कि भाई मेन के लिए सैलरी फॉर द सेम जॉब, एक ही पोस्ट है, उसमें 50% मैन है और उस पोस्ट पे 50% वुमेन है, ठीक है. तो स्टेट कहती है मेन को तो हम लोग 50,000 देंगे पर वुमेन को हम लोग 45,000 देंगे. दोनों एक ही काम कर रही हैं, ठीक है, दोनों मैन एंड वुमेन आर परफॉर्मिंग द सेम जॉब. However, the state is saying कि no, on one side I will pay men 50,000 and I will pay women 45,000. अब मान लीजिए वुमेन बैच ऑफ पिटिशंस लेके जाती हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि देखिए तो इक्वालिटी प्रिंसिपल का वायलेशन है, सेम काम हम कर रहे हैं पर मेन को ज़्यादा सैलरी दी जा रही है फॉर द सेम वर्क, हमको नहीं दी जा रही है, तो ये गलत है कि नहीं? तो क्या सुप्रीम कोर्ट हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं और बोले कि अरे देखिए तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क आर्टिकल 39 में मेंशन है, हम तो कुछ कर नहीं सकते अब जब तक ये फंडामेंटल राइट नहीं बन जाता? सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम क्यों वेट करें, इट इज़ इम्प्लिसिट विद इन अंडर आर्टिकल 14 and 16 एंड वी विल इंटरप्रेट इट सो. एंड इट इज़ अ वेरी मोटिवेटिंग थिंग दैट द सुप्रीम कोर्ट डिड. Had this thing not have been there, it would cause a lot of problems. ठीक है, ये तो एक illustration था. Now let me give you some case law. ठीक है, now there was this case of Randhir Singh versus Union of India, AIR 1982, Supreme Court, page number 879. In this case what happened, that there was a difference in salary of the driver constables in Delhi police force and the other drivers in the service of Delhi administration. ठीक है, अब दिल्ली पुलिस फोर्स की जो सैलरी थी वो कम थी, उनके ड्राइवर कांस्टेबल्स की सैलरी कम थी एज कंपेयर टू द अदर ड्राइवर्स इन द सर्विस ऑफ दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट दिस इज इर्रेशनल as there is no reason to give driver constables a lower scale than the other drivers, as their duties are more, not less onerous than those of other drivers. ठीक है, Supreme Court in this very case also refused to accept the argument of Delhi administration that the circumstance that the persons belong to different departments of the government is itself a sufficient reason to justify different scales of pay irrespective of the identity of their powers, duties and responsibility. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गवर्नमेंट के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट होना इज नॉट मटेरियल, ऑल वी हैव टू सी इज द आइडेंटिटी ऑफ द वर्क दैट दे आर डूइंग. ठीक है, गवर्नमेंट का कहना था कि आप इस बात पे ध्यान ही मत दीजिए कि उनकी पावर्स, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा अच्छा जी, हम ध्यान ना दें, सब्सटेंस पे ही तो हमें ध्यान देना होता है. सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया आर्ग्यूमेंट, बोला कि भाई ड्राइवर कांस्टेबल्स को ज़्यादा काम करना पड़ता है, सो दे शुड बी गिवन द प्रेफरेंस, दे शुड एटलीस्ट हैव द इक्वल सैलरी. एंड देन द सुप्रीम कोर्ट मेड सो एंड डायरेक्टेड दैट ऑर्डर. ठीक है, सो लेट मी रीइटरेट,
कहाँ से आता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क का प्रिंसिपल? देखिए वैसे तो 39D में लिखा है, बट द सुप्रीम कोर्ट मेड इट अ पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय रीडिंग आर्टिकल 14, 16, आर्टिकल 39D and the preamble of the constitution together. And Supreme Court stated that doctrine of equality and equal pay for equal work is enshrined in article 14 and flows from it, and the rule is also a part of article 16 clause 1. Always remember, as already stated numerous times by me, that article 14 permits reasonable classification, which means that the classification is to be based on intelligible basis, which distinguishes the persons or things grouped together from those that are left out of the group. And the differentia must have a rational nexus with the object to be achieved by the differentia made. In different words, there ought to be a causal connection between the basis of classification and the object of classification. The doctrine of equal pay for equal work would apply in a case of unequal pay scales based on no classification और irrational classification. मतलब या तो classification है ही नहीं है, अगर classification है तो irrational है, ठीक है? तब ये डॉक्ट्रिन अप्लाई की जाएगी. वैसे ही और भी केस लॉ सुन लीजिए. Supreme Court said in the case of Bhagwan Das versus State of Haryana, AIR 1987 Supreme Court page number 2049, that once the nature and the functions and the work were not shown to be dissimilar, the fact that the recruitment was made in one way or the other would hardly be relevant from the point of view of the equal pay for equal work doctrine. मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक बार ये दिख गया कि नेचर और फंक्शंस ऑफ द वर्क बिटवीन, मतलब जिस पे भी वो ग्राउंड क्रिएट किया गया टू क्लासेस में कि भाई हम भी सेम वर्क परफॉर्म कर रहे हैं पर हमको कम सैलरी मिल रही है और दूसरों को ज़्यादा मिल रही है और सेम एम्प्लॉयर है, दैट इज़ द गवर्नमेंट कंसर्न. तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वंस द नेचर ऑफ द फंक्शंस एंड द वर्क आर नॉट शोन टू बी डिसिमिलर, सुप्रीम कोर्ट ने नेगेटिव सेंस में बोला है कि वंस द नेचर ऑफ द फंक्शंस एंड द वर्क आर नॉट शोन टू बी डिसिमिलर, the fact that the recruitment was made in one way or the other would hardly be relevant from the point of view of equal pay for equal work doctrine. मैं उसको पॉजिटिव सेंस में ऐसे बोल सकता हूँ कि एक बार कोर्ट ने ये देख लिया कि नेचर और फंक्शंस ऑफ द वर्क सेम है बिटवीन टू क्लासेस, येट देयर इज डिफरेंस ऑफ पे स्केल्स फॉर द सेम वर्क, देन इन दैट सिचुएशन मेयरली फॉर द फैक्ट कि उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिफरेंट है, द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क वुड अप्लाई. और ये आर्ग्यूमेंट कि उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिफरेंट है, इसको कोई तवज्जो नहीं दी जाएगी बाय द कोर्ट, ठीक है? द कोर्ट विल नॉट होल्ड सच एन आर्ग्यूमेंट टू बी रेलेवेंट, ठीक? नाउ लेट अस टेक अनदर केस. This is the case of Markande versus State of Andhra Pradesh. Citation is AIR 1989 Supreme Court page number 1308. Supreme Court again reiterated the same principle and pointed out that where two classes of employees perform identical or similar duties and carry out the same function with the same measure of responsibility, having the same academic qualifications, they would be entitled to the equal pay. तब वो डॉक्ट्रिन अप्लाई करेगी, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज एप्लीकेबल अमंगस्ट इक्वल्स एंड नॉट एप्लीकेबल अमंगस्ट अनइक्वल्स. ठीक है, अगर लोग अनइक्वल हैं तो ये प्रिंसिपल नहीं अप्लाई करेगा. अच्छा, इस केस में हुआ क्या था? See, in this case there was a difference in pay scales between the graduate supervisors holding a degree in engineering and non-graduate supervisors who were diploma and license holders. ठीक है? According to the Supreme Court, this basis of difference in educational qualifications and difference in pay scales was justified as it does not offend Article 14 and 16. आप समझ ही सकते हैं क्यों. एक के पास ग्रेजुएट डिग्री है और दूसरे के पास नहीं है, ठीक है? तो ऐसे में जो डिफरेंस क्रिएट किया इन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, इट इज़ a reasonable classification. ठीक है, it is not unreasonable.
A classification based on a difference in educational qualification will justify a difference in pay scale. Always remember that. ठीक है, प्रोवाइडेड वो एक्चुअल में ही डिफरेंस उस बेसिस पे है. एक और केस लीजिए, दैट इज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रमोद भारतीय, AIR 1993, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 286. Now in this case, the lecturers working in higher secondary schools in Madhya Pradesh claimed parity in pay with the lecturers working in technical schools. The qualifications prescribed for and the service conditions of both groups of lecturers were the same, and the status of both types of school were also the same. Nevertheless, in this case, the Supreme Court refused to concede to the lecturers in higher secondary school the same pay scale as the lecturers in technical schools were getting on one ground. ठीक है? According to the Supreme Court, in this case, there was no material to suggest that the functions and the responsibilities of both category of lecturers were qualitatively speaking similar. Supreme Court इस बात पे satisfy नहीं हो पाया था कि जो lecturers higher secondary school में काम कर रहे हैं और जो lecturers टेक्निकल स्कूल में काम कर रहे हैं, उनका जो वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंक्शंस हैं ये क्वालिटेटिवली सिमिलर नहीं है. इस पे कोर्ट ने बोला, इट इज़ नॉट इनफ टू से दैट द क्वालिफिकेशंस आर सेम, नॉर इट इज़ इनफ टू से दैट द स्कूल्स आर ऑफ सेम स्टेटस. इट इज़ ऑल्सो नॉट सफिशिएंट टू से दैट द सर्विस कंडीशंस आर सिमिलर. What is more important and crucial is whether they discharge similar duties, functions and responsibility. यही टेस्ट है, ये मेन चीज़ है कि whether they discharge similar duties, functions and responsibility. Supreme Court further said that the quality of work may vary from post to post, institution to institution, and we cannot overlook this reality. It is not matter of assumption but one of proof. Supreme Court further clarified a point that the plea of equal pay for equal work has to be examined in reference to Article 14, but the burden is upon the petitioners to establish their right to equal pay or the plea of discrimination as the case may be. In this case, the petitioners, who are the respondents before the Supreme Court, failed to discharge this onus. ठीक है, एक और केस बताता हूँ. दिस इज द केस ऑफ गहरवाल जल सम्मेलन कर्मचारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, AIR 1997, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 2143. इस केस का एसेंस इतना सा ध्यान रखिएगा कि जो प्रिंसिपल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वो दो सेट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ पे तब नहीं लगेगा व्हेन दे आर वर्किंग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन and also when there is qualitative difference in their duties and functions discharged by them. याद रखिएगा, जैसा कि मैंने स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस प्रमोद भारती के जजमेंट में बताया कि जो क्रूशियल टेस्ट है वो ये है कि वेदर दे डिस्चार्ज द सिमिलर ड्यूटीज़, फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर दो सेट्स ऑफ एम्प्लॉयज़ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और उनकी ड्यूटीज़, फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अलग अलग है, then this principle would not apply. ठीक है, and the burden of discharging this onus is on whom? It is on the person who asserts that. ठीक है, अब आई थिंक इतने illustrations are sufficient for equal pay for equal work की डॉक्ट्रिन के लिए. I don't think you need more. मेनली इसमें आपको शॉर्ट नोट आएगा. ठीक है, इस पर कोई बहुत बड़ा सवाल आने नहीं वाला. अगर आता है तो भी आप लिख देंगे. मैं तो यही जूम करके चल रहा हूँ कि इस पर अगर बड़ा भी सवाल है तो आप हैंडल कर लें, बट ज़्यादातर शॉर्ट नोट आता है. सो द केस लॉ मेमोराइजेशन इन दिस केस इज़ नॉट दैट मच रिक्वायर्ड. ठीक है, वो केस लॉ की मेमोरी जरा आप रिजर्वेशन के डिस्कशन के लिए बचा के रखिएगा. ठीक है, वो भी आर्टिकल 16 में अभी मेन होना है. अब एक और बात कर लूँ. एक चीज़ सुनी होगी आपने, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट. ठीक है, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई भी इमेजिन कर लीजिए, ही डाइज एंड ही वॉज द सोल ब्रेड अर्नर. अब उसके जो सन, डॉटर या विडो हैं वो तो रोड पे आ जाएंगे बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, है ना. तो ऐसे में गवर्नमेंट उनको भी एक पोस्ट दे देती है
वो ज़रूरी नहीं है कि वही पोस्ट हो जिस पे गवर्नमेंट सर्वेंट था, वो ज़्यादातर क्लास सी या डी में दी जाती है। बहुत रेयर इंस्टेंसेस में अगर रूल्स बने हुए हैं तो क्लास बी दे दी जाएगी, वरना ज़्यादातर आपको क्लास सी देखी जाती है, ठीक है। दैट इज़ द मैक्सिमम दैट यू विल सी जनरली आपको ऑन एन एवरेज यही मिलेगा। पंजाब में तो यही रूल्स हैं, ठीक है। आई हैड एन ओकेजन टू डील विद सच अ केस, तो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आई हैड टू रेफर टू द रूल्स ऑफ पंजाब इन दैट सिचुएशन। स्टेट के रूल्स अलग अलग हो सकते हैं इस पॉइंट पे। कुछ स्टेट्स हैं जो ग्रुप ए गेजेटेड पोस्ट भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में दे सकते हैं, बट वो रेयर इंस्टेंस होते हैं, वेरी रेयर इंस्टेंस। खैर, तो क्या ये जो कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है, इज इट रेलेवेंट अंडर आर्टिकल 14 एंड 16? क्या ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं? क्या ये ऐसा प्रोहिबिटेड ग्राउंड है जिसको अगर गवर्नमेंट यूज़ करती है तो फंडामेंटल राइट दैट इज़ इनकैप्सुलेटेड इन आर्टिकल 16 एंड 14 इसका वायलेशन करेगा? इसका आंसर है नहीं, ठीक है। सी, द अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स ऑफ अ सन डॉटर विडो टू असिस्ट द फैमिली to relieve the economic distress because of the sudden demise of a government servants would be valid under article 16 clause 1 also and article 16 clause 2 also, ठीक है। It is not a prohibited discrimination. The rationale underlying the provision of compassionate appointment to the heir of the deceased employee is that he was the sole breadwinner for the family and his exit has left the family in lurch and in a precarious and vulnerable economic position. So it does not militate against Article 16. Also remember that appointment in public service on compassionate ground is carved out as an exception in the interest of justice, because the general rule is that the appointment in the public service should be made strictly on the basis of open invitation of application and merit, and no other mode of appointment nor any other consideration is permissible. Since it has been carved out as an exception, nobody can claim it as of right under Article 16 of the Constitution, ठीक है, याद रखिएगा। Therefore, high courts or administrative tribunals are not empowered to direct the state to make the appointment on compassionate grounds when the regulations framed in respect thereof do not cover and contemplate such appointments. This is the view of the Supreme Court in the case of Commissioner of Public Instructions versus K.R. Vishwanath, AIR 2005, Supreme Court, page number 3275, ठीक है। मतलब हाई कोर्ट्स तब डायरेक्शन नहीं दे सकते जब ऐसा कोई रूल ही गवर्नमेंट ने नहीं बनाया है, ठीक है। मान लीजिए कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का रूल है, ये गवर्नमेंट ने बनाया है और बोला है कि इन अकॉर्डेंस विद आर रूल्स हम मैक्सिमम ग्रुप बी पोस्ट दे सकते हैं, या डिपेंड्स ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसे सिचुएशन में जो हाई कोर्ट्स हैं ये तो कह सकते हैं कि यू कैन गो कंसिडर इट, और अगर केस फॉल कर रहा है देन द गवर्नमेंट शुड कंसिडर हर केस एंड गिव दिस पर्सन एन अपॉइंटमेंट ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स। पर अगर मान लीजिए रूल्स है ही नहीं या रेगुलेशन है ही नहीं उस बिहाफ पे, या आइदर ऑफ देम अगर हैं एंड दे डू नॉट कंटेम्पलेट और इवन प्रोहिबिट सच अपॉइंटमेंट्स ऑन कंपैशनेट ग्राउंड्स, देन द हाई कोर्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कैन नॉट डायरेक्ट द स्टेट टू मेक सच एन अपॉइंटमेंट, ठीक है। जनरली आप देखेंगे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कभी कभी गवर्नमेंट खुद ही दे देती है और कभी कभी लोग कोर्ट के थ्रू उसे क्लेम करवा लेते हैं, पर वो तब होता है जब रूल्स ऐसे एग्जिस्टेंस में हैं। अब एक केस था, मैं थोड़ा पर्सनल होके बता रहा हूँ, उसमें जो अपॉइंटमेंट था वो ग्रुप बी की पोस्ट पे हो गया था, ठीक है। और जो रूल्स थे वो डायरेक्ट करते थे कि ग्रुप सी या डी इन्हीं दोनों पोस्ट पे कंपैशनेट अपॉइंटमेंट हो सकता है, आप ग्रुप बी या ए में नहीं कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के थ्रू किसी को एंट्री दे सकते हैं। तो उसमें वो चैलेंज हुआ था एंड इवेंचुअली जो पर्सन था जिसको कंपैशनेट अपॉइंटमेंट ग्रुप बी की पोस्ट में दिया गया उसको टोन डाउन कर दिया गया एंड शी वाज शिफ्टेड टू द पोस्ट ऑफ ग्रुप सी। तो ऐसा होता है, याद रखिएगा। ऐसा कंपैशनेट अपॉइंटमेंट जो है
ये हमेशा मेड होता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड गाइडलाइंस जो कंसर्न अथॉरिटी ऑलरेडी फ्रेम करके रखती है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, या इवन सुप्रीम कोर्ट भी अपॉइंट्स इट्स ओन ऑफिसर्स और ये सारी चीज़ें, लाइक हाई कोर्ट ऑल्सो। तो वहाँ पे भी अगर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का रूल उन्होंने बनाया है तो उनके हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है। एक केस है उमेश कुमार नागपाल वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, 1994, वॉल्यूम 4, सुप्रीम कोर्ट केसेस, पेज नंबर 138। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही थी, पर आपके रेलेवेंसी के लिए एक ही बात है कि कंपैशनेट अपॉइंटमेंट को लेके उन्होंने ये बोला कि इट इज़ नॉट टू बी अपॉइंटेड एज अ मैटर ऑफ कोर्स बट ओनली आफ्टर एग्जामिनिंग द फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द फैमिली. It is only if the concerned authority is satisfied that but for the provision of employment, the family of the deceased employee will not be able to meet the crisis that a job is to be offered to an eligible member of the family. Such an appointment can be made only against the lowest post in non-manual and manual categories. That was the opinion of the Supreme Court. कि पहले तो फाइनेंशियल कंडीशन देखेंगे, अथॉरिटी देखेगी, और उसके बाद ये डिसाइड करेगी कि ओके अगर इन लोग को जॉब नहीं दिया तो सीवियर इकोनॉमिक डिस्ट्रेस इन लोग को हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में जॉब दी जाती है, ठीक है, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कंपैशनेट अपॉइंटमेंट. अब एक और चीज़ याद रखिए कि जो अपॉइंटमेंट ऐसा है जो कंपैशनेट ग्राउंड पे होना होता है उसको जितना जल्दी हो सके अपॉइंटमेंट का डायरेक्शन दिया जाता है. सुप्रीम कोर्ट ने डेप्रिकेट की है ऐसी प्रैक्टिस टू कीप सच केसेस पेंडिंग फॉर ईयर्स. अकॉर्डिंग टू द कोर्ट सच अपॉइंटमेंट्स शुड बी मेड इमीडिएटली टू रिडीम द फैमिली इन डिस्ट्रेस. क्योंकि इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से बचाना पर्पस है कंपैशनेट अपॉइंटमेंट का, तो अगर इफ़ यू कीप इट पेंडिंग फॉर ईयर्स तो पूरा पर्पस ही फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, है ना. नाउ टेक द केस ऑफ श्रीमती सुषमा गोसेन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. It was decided on 25th August 1989. In this case, the candidate was kept waiting for 4 years. ठीक है. And Supreme Court said that the denial of appointment in this case is patently arbitrary and cannot be supported in any view of the matter. According to the Supreme Court, there was absolutely no reason to make her wait for such a long time. अब हुआ क्या था कि नवंबर 1982 में श्रीमती सुषमा गोसेन सॉट एन अपॉइंटमेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल बॉर्डर रोड लोअर डिवीजन क्लर्क ऑन कंपैशनेट ग्राउंड, ठीक है. अब इन जनवरी 1983 शी वॉज कॉल्ड फॉर अ रिटन टेस्ट एंड लेटर फॉर एन इंटरव्यू. शी वॉज सेड टू हैव पास द ट्रेड टेस्ट बट नॉनदलेस शी वॉज नॉट अपॉइंटेड. Whenever she approached DGBR, she was told that her case was under consideration. Supreme Court very categorically stated that it must be stated unequivocally that in all claims for appointment on compassionate grounds, there should not be any delay in appointment. The purpose of providing appointment on compassionate ground is to mitigate the hardship due to death of the bread earner in the family. Such appointment should therefore be provided immediately to redeem the family in distress. It is improper to keep such case pending for years. If there is no suitable post for appointment, a supernumerary post should be created to accommodate the applicant. उसके बाद गवर्नमेंट को डांटने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि शी शुड बी क्या कहते हैं अपॉइंटेड in the appropriate place in Delhi itself, और अपॉइंटमेंट अब से 3 हफ्ते में होगा फ्रॉम द डायरेक्शन. साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनके जो कॉस्ट थे उनको क्वांटिफाई किया और बोला कि इनके जो 15,000 के कॉस्ट हैं दैट शुड बी पेड टू हर. देखिए 1989 की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट क्वांटिफाइड हर कॉस्ट एट ₹15,000. नाउ दैट इज़ वेरी गुड ऑफ द जुडिशरी, ठीक है, स्पेशली द सुप्रीम कोर्ट. तो आपको गुड भी अप्रिशिएट करना चाहिए. सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर द कंपैशनेट अपॉइंटमेंट. ये भी बताना था कि ये आर्टिकल 16 के ख़िलाफ़ नहीं है, अलाउड है. कल से हम लोग क्या कहते हैं केस लॉ ऑन रिजर्वेशन से डील करेंगे. अब आपके लिए मोस्टली तो ब्रीफ ओवरव्यू आर्टिकल
16 का जो देना था दे दिया. टुमारो we'll be dealing with Article 16 clause 4 to clause 5. No, also clause 6. Article 16 clause 4 to clause 6. ठीक है. उसमें मेन चीज बस केस लॉ का बल्क है. कल आर्टिकल 16 पे लास्ट लेक्चर होगा. आर्टिकल 16 भी खत्म हो जाएगा कल. ठीक है. सो दैट इज इट फॉर टुडे. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.